Evaluate 3 raised to power minus 2. We have a law of exponent x raised to power minus a, that is equals to 1 upon x raised to power a. By using this law, we will solve question number 1. 3 raised to power minus 2. We can write it as 1 upon 3 raised to power 2. और पावर हमें क्या बताती है कि बेस कितने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. 3 2s are 6 नहीं कर देना इसे. 3 3s are 9. So answer will be 1 by 9. Minus 4 raised to power minus 2. We can write it as 1 upon base is minus 4. उसका साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ पावर का साइन चेंज होगा. Sorry. 1 upon minus 4 multiply minus 4. Minus minus plus 4 4s are 16. 1 upon 2 raised to power minus 5. जब ऐसे है हमारे पास अपॉन में टर्म है तो ये रिवर्स हो जाएगा. वी कैन राइट इट एज 2 upon 1, then power will be positive. So we can write it as 2 raised to power 5 upon 1 raised to power 5. So 2 को 5 times multiply करेंगे. 1 2 3 4 5. 1 को जितनी भी बार multiply करो आंसर will be 1. 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32. So answer will be 32. Clear? अगर x upon y raised to power a है, so that will be equal to x raised to power a upon y raised to power a. This law we have applied here. X upon y raised to power a. So x raised to power a upon y raised to power a. First question clear to everyone? Let us move to the next one. चलिए. Simplify and express the result in power notation with positive exponent. तो हमने अंडरलाइन करना है कि हमें आंसर एक तो पावर में देना है और एक्सपोनेंट शुड बी पॉजिटिव. तो दो बातों का हमें ध्यान रखना है. चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं. -4 raised to power 5 divided by -4 raised to power 8. If base is same, x raised to power a divided by x raised to power b. तो पावर्स क्या हो जाती है? माइनस. डिवाइड हो रहे हैं, बेसिस सेम. सो -4 5 -8. जो भी लॉ अप्लाई कर रहे हैं मेंशन करेंगे. 5 -8 इज -3. आंसर हमें पावर में देना है बट पॉजिटिव. तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मींस 1. तो I can write it as 1 upon -4 raised to power 3. X raised to power minus a, that is equals to 1 upon x raised to power a. So -4 को 1 upon -4 हो गया, पावर 3. 1 की पावर भी 3 कर दो तो आंसर will be same. Next is 1 by 2 power 3 power 2. So 1 का स्क्वायर, 2 की पावर 3 का स्क्वायर. सबसे पहले हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया? x upon y raised to power a, that is equals to x raised to power a upon y raised to power a. Next x raised to power m raised to power n. अब कोई भी यहाँ पे जो अल्फाबेट से यूज कर सकते हो, a की पावर में भी x की पावर में भी, जैसे आपने याद किए. सो डिनोमिनेटर में लग जाएगा 1 की पावर 2, that is 1 square equals to 1. 2 की पावर 3 2s are 6. तो हमें पावर नोटेशन में आंसर देना है और विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट. सो कैन आई राइट इट एट लाइक दिस 1 by 2 raised to power 6. क्योंकि आप 1 की पावर जितनी भी लिख दो आंसर विल बी 1, राइट? तो यहां तक नोट कीजिए. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन. और यू कैन राइट इट एज 1 upon 2 raised to power 6 इज ऑल्सो राइट. ओके, अगर आपको इससे कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि यहाँ पे पावर 1 की 2 थी तो आप यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हो.
चलिए, let us move to the third part now. और similarly, first में you can write it as 1 upon minus 4 raised to power 3. क्योंकि यहाँ पे तो 1 नहीं था ना फर्स्ट पार्ट में, यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था. -4 था, x raised to power -a. That is 1 upon x raised to power a. So you can write like this. चले थर्ड पार्ट पे. Okay, so moving to the third part. What is the statement for the third part? Note it down. -3 raised to power 4 -3 raised to power 4 multiply 5 by 3 raised to power 4. Okay. यहाँ पे -3 को you can write it as -1 multiply 3. Yes or no? ठीक है. और यहाँ पे आपने लॉ अप्लाई कर दिया x अपॉन y रेज टू पावर a. चलिए, लेट अस मूव टू द थर्ड पार्ट नाउ. -3 raised to power 4 into 5 by 3 raised to power 4. We can do this sum by two ways. कि या तो आप देखो दोनों की पावर सेम है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, इस पूरी को x मान लो, इस पूरी को y मान लो, तो भी कर सकते हो. या मैंने यहाँ पे देखा कि 3 है, तो यहाँ मैंने -3 को -1 into 3 लिख दिया. आई कैन राइट लाइक दिस. ओके. और यहाँ पे लॉ लगा दिया x अपॉन y रेज टू पावर a. दैट इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर a अपॉन y रेज टू पावर a. और यहाँ पे x मल्टीप्लाई y, x y रेज टू पावर a, x रेज टू पावर a इंटू y रेज टू पावर a. सो -1 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4, 3 की पावर 4. ये तो कैंसिल हो गया. सेम टर्म -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, आंसर विल बी +1. माइनस की पावर इवन है, सो 1. हमें एक्सपोनेंट की फॉर्म में आंसर देना है, सो आंसर इज 5 रेज टू पावर 4. ठीक है. चलिए नेक्स्ट वन. फर्स्ट डिवाइड है, चलो डिवाइड करते हैं. सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं है. 3 रेज टू पावर -7 divided by 3 raised to power -10. Okay, apply the law. X raised to power a, denominator basis सेम, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस. सो ध्यान देंगे ऊपर वाली टर्म की जो भी पावर है एज इट इज, माइनस देन -10 इज देयर, तो अप्लाई द ब्रैकेट. Multiply 3 raised to power -5. Open the brackets now. Minus minus plus 10. So 3 raised to power 10 minus 7, that is 3. Multiply 3 raised to power -5. Base is same. Multiply हो रही है. X raised to power a, X raised to power b. So powers हो जाएंगी add 3 plus -5. 3 plus minus. So 3 raised to power -2. Now again apply the law, क्योंकि हमें पॉजिटिव पावर में आंसर देना है, तो यहाँ पे हमने लॉ अप्लाई किया. x raised to power -a 1 upon x raised to power a. जो भी लॉ अप्लाई कर रहे हो लिखते जाना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. क्लियर टू एवरीवन? मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट. नाउ base is different but powers are same and multiply is there, तो दोनों terms multiply हो जाती हैं x into y. So 2 multiply -7 whole raised to power -3. So 2 sevens are 14 minus k. Now we will apply the law here. X raised to power -a 1 upon x raised to power a. So 1 upon -14 raised to power 3. Clear to everyone? Second question. Moving to the third one. Find the value of this. So let us move to the first part.
So there is one law also here जो हमने previous classes में नहीं पढ़ा है. Something raised to power 0 that is equals to 1. This is the law. Something raised to power 0 equals to 1. So apply this law here. 3 raised to power 0 plus x raised to power minus a, 1 upon x raised to power a, multiply 2 square. Something raised to power 0 is 1 plus 1 by 4. 2 square is 4. Take the LCM. 1 plus 1 by 4. That is 5 by 4. Multiply 4. So 5 by 4 multiply 4. Answer will be 5. यहाँ पे जो भी लॉ अप्लाई किया है, समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1 ये किया, x रेज टू पावर माइनस है ये वाला लॉ अप्लाई किया. सो मेंशन करेंगे ब्रैकेट में जो भी लॉ हमने अप्लाई की. ठीक है. सो टेक द एलसीएम, सॉल्व द टर्म और 5 by 4 multiply 4. So answer will be 5. Now moving to the second part. 2 raised to power minus 1 multiply 4 raised to power minus 1 divided by 2 raised to power minus 2. सबसे पहले यहाँ पे हमने लॉ अप्लाई किया. x raised to power minus a that is equals to 1 upon x raised to power a. So power here is 1. So 1 by 2 into 1 by 4 divided by, यहाँ पे x raised to power minus a का कर दिया 1 upon x raised to power a. So 1 by 2 multiply 1 by 4 divided by 2 square is 4. So इन दोनों को multiply किया, divide की जगह multiply का साइन लगाया. So take the reciprocal. 4 2s are 8. So answer is 1 by 2. ठीक है. Moving to the third part. 1 by 2 raised to power minus 2 plus 1 by 3 raised to power minus 2 plus 1 by 4 raised to power minus 2. अगर 1 upon x raised to power a हो तो हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं. अगर सिर्फ x था 1 by x कर दिया. 1 by x का क्या हो जाएगा? x. सो पावर हो जाएगी पॉजिटिव, मतलब हमने इसको उल्टा कर दिया. 2 by 1 प्लस 3 by 1 पावर पॉजिटिव करने के लिए 4 by 1. यही लॉ अप्लाई किया सेम. सो अपॉन तो 1 नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 2 स्क्वायर. सो नेक्स्ट स्टेप में आप पहले ये लिख सकते हो प्लस 3 स्क्वायर प्लस स्क्वायर. 4 plus 9, 4 4s are 16. 9 plus 4 13 plus 16. So answer will be 29. तो इसमें ध्यान रखना है कि 1 by 2 को 2 by 1 करना है. Moving to the fourth part now. So what is the fourth part? चलिए फोर्थ पार्ट चल रही है. 3 raised to power minus 1 plus 4 raised to power minus 1 5 raised to power minus 1 whole raised to power 0. We know something raised to power 0 is 1. So answer तो ultimately 1 ही आना है. So चाहो तो आप पहले इसे solve कर लो. 1 upon x raised to power a. So 1 by 3 क्योंकि power 1 नहीं है. 1 by 4 1 by 5. आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे. 4 3s are 12, 5s are 60, 3 into 20, 4 into 15, 5 into 12. So 5 plus 2 47 by 60 raised to power 0 is equals to 1. जब भी पूरी ब्रैकेट की पावर 0 है आंसर 1 ही आना है. 1 मार्क में है तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो. So you can directly apply something raised to power 0 is equals to 1. ठीक है, आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते थे. नेक्स्ट पार्ट इज minus 2 by 3 की पावर minus 2 whole raised to power 2. सबसे पहले लॉ अप्लाई करो. x raised to power m raised to power n. So x raised to power mn. So minus 2 by 3 minus 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया minus 4. ठीक है.
Now power is negative, so x raised to power minus a, reciprocal ले लेंगे 3 upon minus 2 raised to power 4. 3 को 4 times multiply करो, 3 3s are 9, 3s are 27, 3s are 81. Minus की power even, तो answer will be positive. 2 को 4 times, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16. Evaluate करना है. तो अगर बहुत बड़ी कोई पावर आती है तो आप ऐसे छोड़ सकते हो, अदरवाइज इवेल्युएट में आपको सॉल्व करना है. क्लियर टू एवरीवन? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज इवेल्युएट. हियर इट इज 2. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे देखो 8 की पावर -1, सो वी कैन राइट इट एज 1/8, राइट. तो सबसे पहले हमने लगा दिया कौन सा लॉ, x रेज टू पावर -8. यहाँ पे 2 की पावर -4 थी, ये ऊपर चला गया 2 रेज टू पावर 4. अगर कोई टर्म न्यूमिरेटर में है और उसकी पावर माइनस है तो वो नीचे आ जाएगी. जैसे 8 की पावर -1 था तो हम उसे डिनोमिनेटर में ले आए तो पावर पॉजिटिव हो गई. यहाँ पे 2 की पावर -4 थी, ये ऊपर चला गया तो पावर पॉजिटिव. 2 की पावर 4 क्या आया, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16. 5 cube is 125 and 8 की पावर 1 means 8. 8 2s are 16. 125 into 2 is 250. Evaluate करना था, so find the value. Next one, second part, 5 raised to power -1. Again, apply this law. 1/5, 2 की पावर -1, 1/2, 6 की पावर -1, 1/6. पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर. सो 1/10 multiply 1/6. We got the answer as 1/60. नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ m. इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में. 5 raised to power m divided by 5 raised to power -3. So there are 2 ways to solve this. चाहे तो आप इस टर्म को उधर ले जाओ, चाहे इधर डिवाइड वाला लॉ लगा लो. चॉइस इज योर्स. तो चलो मान लो मैं इस टर्म को उधर ले गई तो ये हो गया मल्टीप्लाई, बेस इज सेम तो पावर्स क्या होंगी, एड. 5 + -3 लॉ जो भी यूज किया है लिखना है. x raised to power a into x raised to power b, x raised to power a plus b. Plus minus minus 5 minus 3 is 2. Now equal sign is there, base is same, so equate like terms. टर्म सेम है, बेस सेम है, इक्वेट करेंगे तो पावर्स विल ऑल्सो बी इक्वल. सो 5 raised to power m is equals to 5 raised to power 2. It means m is equals to 2. Clear? Next one, evaluate. चलिए कीजिए सॉल्व. फर्स्ट पार्ट, x raised to power -a. अप्लाई द लॉ 1/x. यहाँ पे 1/3 है, रिवर्स हो गया 3/1. पावर 1 नहीं है, लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1/4 रिवर्स हो गया, पावर 1 ही है. अब बाहर होल की पावर -1 रहती है. अभी 3 - 4 -1. अगेन x raised to power -a. 1/x क्या है, -1. पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. 1/-1, आंसर विल बी -1. क्लियर? सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स है उन्हें सॉल्व किया जाएगा, बाद में बाहर वाली पावर को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स थी सब्ट्रैक्शन या एडिशन में होंगी. तो चलो नेक्स्ट करते हैं. इस पे भी यही लॉ अप्लाई होगा. अगर मैंने पावर पॉजिटिव करनी है, रेसिप्रोकल हो गया टर्म का 8/5 raised to power 7 और ये हो गया 5/8 raised to power 4. पावर्स पॉजिटिव हो गई. अब 8 raised to power 7, 5 raised to power 7,
5 रेज टू पावर 4, 8 रेज टू पावर 4. कौन सा लॉ अप्लाई किया? x अपॉन y रेज टू पावर a, x रेज टू पावर a, y रेज टू पावर a. अब मुझे सेम सेम टर्म्स दिख रही हैं, तो मैं 8 के नीचे 8 वाली लिख देती हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई में है. ठीक है. सो यहाँ पे अब डिवीजन का लॉ अप्लाई हो जाएगा. बेसिस सेम, पावर्स आर डिफरेंट. सो कौन सा लॉ अप्लाई किया अब हमने? x रेज टू पावर a अपॉन x रेज टू पावर b, x रेज टू पावर a माइनस b. सो 7 माइनस 4, डिनोमिनेटर में 5 की पावर बड़ी है तो हम न्यूमिनेटर वाली नीचे ले आते हैं. 7 माइनस 4, 8 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 3. अब हमने ये लॉ अप्लाई कर दिया, ये वाला, x की पावर a अपॉन y की पावर a, x अपॉन y की पावर a. अब हमें इवेल्युएट करने के लिए कहा है तो मल्टीप्लाई कर दो. 8 क्यूब इज 512 एंड 5 क्यूब इज 125. ठीक है. प्रैक्टिस करोगे तभी कर पाओगे, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन. सिंप्लीफाई. t इज नॉट इक्वल्स टू 0 इसकी ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि अगर t डिनोमिनेटर में है वो 0 हो जाता है. समथिंग रेज टू पावर 0 नॉट डिफाइंड. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. 25 we can write it as 5 into 5, that is 25. 10 डिनोमिनेटर में है. अब 5 रेज टू पावर माइनस 3, सो अप्लाई द फॉर्मूला x रेज टू पावर माइनस a. सो ऊपर ले जाएंगे पावर पॉजिटिव करने के लिए. 1 अपॉन x रेज टू पावर a. नाउ t की पावर माइनस 4 एंड डिनोमिनेटर में है t की पावर माइनस 8. ओके. जो कैंसिल होता है, 5 2 जा 10, 5 क्यूब इज 125 अपॉन 2. अब t बचा है, t सेम बेस वाली दो टर्म्स है. सो x रेज टू पावर a अपॉन x रेज टू पावर b, x रेज टू पावर a माइनस b, माइनस 4 माइनस माइनस 8. सो क्या आया सॉल्व करके? 125 इंटू 5, 625 बाय 2. t की पावर सॉल्व करते हैं. माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 8. सो क्या आ गया? 625, 8 माइनस 4, t रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2. 625 t रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. चलिए सेकेंड पार्ट पे चलते हैं इसके. तो 3 रेज टू पावर माइनस 5, 10 रेज टू पावर माइनस 5, 125, 5 रेज टू पावर माइनस 7, 6 रेज टू पावर माइनस 5. सबसे पहले x रेज टू पावर माइनस है, पावर्स पॉजिटिव बना लेते हैं. जिसकी नेगेटिव थी वो नीचे आ जाएगी, पॉजिटिव हो गई, और जो नेगेटिव की नीचे थी वो ऊपर चले गई, टर्म्स पॉजिटिव हो गई. नाउ 125 ऊपर था. ओके. नाउ 5 रेज टू पावर 7. अब यहाँ पे मैं देखूं डिनोमिनेटर में मेरे पास कोई 6 नहीं है, न्यूमिनेटर में 6 है. आई कैन राइट 6 एज 3 मल्टीप्लाई 2. यस और नो? 125 को लिख दिया 5 का पावर 3. नाउ 10 मेरे पास न्यूमिनेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में मैं 10 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 5, दैट इज 10. अब मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि मेरे पास अगर कोई टर्म कैंसिल होती है, जब बेस सेम हो जाए तो मेरे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होके आंसर आ जाएगा. नाउ सबसे पहले मैंने कौन सा लॉ अप्लाई किया? एक्स वाई रेज टू पावर a, x रेज टू पावर a, y रेज टू पावर a. तो 5 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 5, 2 raised to power 5, 5 raised to power 3. In the denominator, we have 3 raised to power 5, 2 raised to power 5, 5 raised to power 5.
अब देखो 3⁵5 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, 2 की पावर भी 5 दोनों में है, कैंसिल हो गए। न्यूमिनेटर में सेम टर्म सेम बेस, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या हो जाती है पावर ऐड। और डिनोमिनेटर में 5⁵5। अब यहाँ पे हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, x⁵ a इंटू x⁵b a प्लस b। इसके बाद हम डिवाइड वाला लॉ अप्लाई कर देंगे, 5⁻10 बाय 5⁻5, तो 5⁻10 माइनस 5। अब 5⁻5 भी आंसर लिख सकते हो, चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 5 क्यूब इज 125 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर 25। इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की बजाय आप डायरेक्टली 5⁻5 तक आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। जिसकी कैलकुलेशन लेंदी हो उसमें आप पावर्स में आंसर छोड़ सकते हो, ओके। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होती है फिनिश। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इन नंबर को अगर हम रीड करें, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड। 0.0000000 कितनी बार बोलना पड़ेगा, इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म हम कहीं लिख सकते हैं। अब पहला डिजिट कौन सा आ रहा है, 0 के बाद 8 और उसके बाद कौन सा डिजिट है 5, तो आई कैन राइट इट एज 8.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, माइनस में। अब माइनस में क्यों, क्योंकि इसके आगे नंबर ऑफ जीरोस है, 8 से पहले है नंबर ऑफ जीरोस, तो मैं लगाऊंगी पावर में माइनस। अब कितने डिजिट्स है 8 से पहले, सो लेट अस काउंट कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 8 के भी बाद लगाया है, तो 8 तक नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए 12। So we will write it as 8.5 into 10⁻⁻12। अब नेक्स्ट में देखें 9, सबसे पहला डिजिट 0 के बाद आ रहा है 9, उसके बाद दो डिजिट्स है 4 2। 9 से पहले है जीरोस तो पावर माइनस की आएगी। अब मुझे 9 तक काउंट करने हैं, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So 9.42 into 10⁻⁻12। अब थर्ड पार्ट में जीरोस आर ऑन द राइट, तो पावर जो होगी 10 की वो पॉजिटिव आएगी। 6.02, क्योंकि 2 के बाद सारी जीरोस ही है, नाउ पावर विल बी पॉजिटिव। तो 6 के बाद काउंट करो, हमने 6 के बाद डेसिमल अप्लाई किया, कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So 10⁻15. If zeros are on the right, power will be positive. If zeros are on the left, power will be negative. So next आएगा 8.37 10⁻⁻, तो 8 तक काउंट करो, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 10⁻⁻9. Now fifth, zeros are on the right, 3 के बाद decimal, so 3.186 into 10⁻, पॉजिटिव आएगा, तो 3 के बाद डिजिट्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10⁻10. Clear to all of you? So we can call it as a standard form or short form. Now usual form में लिखना है। Now जैसे हमने प्रीवियस में हमें 0.00 लिखा था, अब हमें उसी फॉर्म में लिखना है। So first is 3.02, तो 302 लिख दिया। पावर है माइनस, तो मतलब नंबर ऑफ जीरोस आएंगी लेफ्ट पे। 3 को काउंट करके 6 पावर, so 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हो गए, देन डेसिमल। So
3 को काउंट करके 6, तो 5 zeros 302. 10 raised to power 4 मतलब पॉजिटिव पावर है, 4 के बाद 4 डिजिट्स, 5 इज द फर्स्ट डिजिट, 3 जीरो आ गई तो हो गया 4.5 10 raised to power 4. 3 into 10 raised to power -8, तो 8 डिजिट, एक तो 3 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, so 7 zeros and 3. नेक्स्ट 10 raised to power 9, so 1 के बाद डेसिमल है तो 9 डिजिट, ये कितने हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट तो यही है, इन्हें लिख दो. 9 बनाने हैं, 5 डिजिट और चाहिए, 1 2 3 4 5, जीरोस आ गई उतनी. 5.8 into 10 raised to power 12, 5 के बाद 12 डिजिट्स, एक तो हो गया 8, 11 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो इस तरह से आप काउंट करके लिखोगे. नाउ 10 raised to power 6, 1 2 3 4 5 डिजिट्स तो है ऑलरेडी, 6 1 4 9 2, तो एक जीरो आ गई, 10 raised to power 6 तक हो गया कंप्लीट. चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं. Express the number appearing in the following statement in the standard form means short form, right? So let's start. 1 micron is equals to this. अब डिनोमिनेटर में है, कितनी जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6, so 1 upon 10 raised to power 6. अगर मैं इसको ऊपर लिखूं 10 raised to power -6 meters, so 1 मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो, डायरेक्टली भी 10 raised to power -6 लिख सकते हो. सेकेंड, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ओके, कितनी जीरोस है, 3 3 2 6 9 12 15 18, तो 0, so we can write it as 1.6, जैसे हमने प्रीवियस लिखा था, 0 के बाद फर्स्ट डिजिट आ रहा है 1, और 18 थे और 1 को काउंट करके हो गए 19 डिजिट्स, so 10 raised to power -19 coulomb. 1.6 into 10 raised to power -19. Now zeros are again on the left hand side, so 10 की पावर आएगी माइनस में, काउंट करो नंबर ऑफ डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है और 5 को इंक्लूड करके हो गए 7, 5 into 10 raised to power -7. सो 1 के बाद डेसिमल आएगा नेक्स्ट में, काउंट करो 1 तक नंबर ऑफ डिजिट, 1 2 3 4 5, सो 10 raised to power -5, और इसकी 0.07 है, सो वी कैन राइट इट एज 7 into कितने डिजिट्स हुए, 2, 10 raised to power -2 millimeters. क्लियर है कैसे करने हैं? In a stack, there are 5 books, each of thickness this, 5 paper sheet, each of thickness this. What is the total thickness of the stack? कितनी होंगी? 5 books हैं, so thickness of one book is equals to 20 millimeter. तो 5 books की कितनी हो गई? 5 into 20, 5 2s are 10, so 100. 5 paper sheets हैं, so thickness of one paper sheet that is 0.016 millimeter. So 5 paper sheets की होगी, 5 से multiply, 16 5s are 80, 0.080 millimeter. So what we want to find? Total, right? So total thickness of stack, दोनों को add कर देंगे, 100 plus 0.080, so 100.080. so अगर मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, 1 के बाद डेसिमल 1.00080, 10 raised to power कितना आया, डेसिमल कहाँ गया, 2 प्लेसेस, so 10 raised to power
1.0008, जहां तक 0 से पहला लास्ट डिजिट 8 है, सो 1.0008 इंटू 10⁻²। 10⁻² का मतलब क्या है? अगर मैं खोल के दिखाऊं कि 2 0 और आ गई, ठीक है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थे? 4, 1 2 3 4। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो 2 जीरोस आ गई 10⁻² की, और 4 डिजिट बाद डेसिमल लगाओ तो 100.08। यही हमारा आंसर था। ये सिर्फ मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि वही आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टेप। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 12, 2 ही एक्सरसाइज थी, वो होता है फिनिश। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नो?